क्लासेस सिंपली साइंस, वो जगह जहाँ पे आपके कॉम्प्लेक्स साइंस कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाइड वर्जन में एक्सप्लेन किया जाए, especially from the point of view of class 10 students. So let's start. In part 1 of the series of 7, हमने डिस्कस किया था basics of chemistry, which pertain to class 9. अब उसमें what did we discuss in that? We discussed valencies, valence electrons, metals, definition of metals, non-metals, atomic numbers, so on and so forth. इसमें हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं. We deal with why do chemical reactions take place, the different types of bondings that take place, namely ionic bonding and covalent bonding. So we're going to in this video deal with three concepts again. In this video, let us focus on three concepts: why do chemical reactions occur, and details of ionic bonding and covalent bonding. So let's begin. As discussed in video number 1, जहाँ पे अगर आप refer कर सकते हैं part 1 of the series of 7 में, sodium metal का atomic number 11 है, which basically means it has 11 protons and 11 electrons. Overall charge तो neutral है, but stable नहीं है. Stable होने के लिए octet rule को follow करना चाहिए. So stable बनने के लिए अगेन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने का ऑप्शन है या 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने का. ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया इन द प्रीवियस वीडियो. सो आई विल forego the detailed discussion of this concept in this video and focus more on the types of bonding. अगर आपको डिटेल में जानना है कि why lose, why gain, what is octet rule, kindly watch video number 1, which is part 1 of the series. Links are given in the description below. So it has, like I said, 11 protons, 11 electrons, electrically neutral but not stable. To become stable, it has to lose an electron. And by doing that, overall charge becomes positive 1. So if it loses 1, positive 1 charge, loses 2, positive 2 charge, loses 3, positive 3 charge. So metals tend to lose electrons to form a metal ion. You can follow my cursor. So sodium atom, electronic configuration 281, will lose 1 electron to form sodium ion, sodium positive ion, hence the word cation. Let's talk about chlorine now. Chlorine is a non-metal. Why is it a non-metal? Because non-metals tend to gain electrons and form negative ions, as discussed again in part 1 of the video series. So atomic number 17, 17 protons, 17 electrons, overall charge neutral but not stable. ऑक्टेट रूल फॉलो करना है तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और इसके आउटर मोस्ट शेल में तो अगर आप देखिए मेरा कर्सर सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो इसके पास या तो 7 ऑप्शन है लूज करने का या 1 ऑप्शन है गेन करने का. सो टू सेव एनर्जी तो लोअर एनर्जी स्टेट वाली चीजें पहले होती हैं. सो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके पास 17 प्रोटॉन्स थे बट 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. एज अ रिजल्ट ओवरऑल चार्ज विल बिकम -1. सो क्लोरीन will gain an electron to form negative chlorine ion, hence an ion. Non-metals की definition ही यही है. Non-metal gains electrons to form non-metal ion. So अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और पॉजिटिव आयन फॉर्म किया. क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और नेगेटिव आयन फॉर्म किया. तो आप क्लियरली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देख सकते हैं that sodium is forming a positive ion, chlorine is forming a negative ion. So when sodium and chlorine react, sodium forms positive ion, chlorine forms negative ion. So opposite charges attract or repel. The easiest answer to that you might have already guessed is they always attract. So opposite charges attract and form an ionic bond. Sodium ion combines with chlorine ion. Being opposite charges, they form sodium chloride. इसको ionic bonding क्यों कहते हैं? Because ये ions के बीच में है, sodium ion और chlorine ion. और आयोनिक बॉन्डिंग में होने के लिए चार्जेस ऑपोजिट होने चाहिए और चार्जेस ऑपोजिट तभी होंगे जब एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा. अब पॉजिटिव आयन होने के लिए मेटल की जरूरत है और नेगेटिव आयन क्रिएट करने की नॉन मेटल की जरूरत है. तो आयोनिक बॉन्डिंग सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स में ही हो सकती है, मेटल और मेटल में नहीं, नॉन मेटल और नॉन मेटल में नहीं. सो आयोनिक बॉन्डिंग ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन अ मेटल and a non-metal. Please keep that in mind because the metal will lose electrons to form a positive ion, whereas chlorine will gain electrons to form a negative ion. And being opposite charges, they will attract. Such a bonding is known as ionic bonding. So, like in video 1 जब हमने discuss किया था, what happens when they have exactly half the number of electrons?
So when you have half the number of electrons, they end up sharing. अब उसमें उस वीडियो में ये तो बात की थी कि हाइड्रोजन और कार्बन विल शेयर. ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में हमने लिखा था, अगर आप वीडियो देखें, कि दे विल गेन, बट ऑक्सीजन ऑल्सो हैज द प्रॉपर्टी ऑफ शेयरिंग. नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं वो आयोनिक बॉन्डिंग नहीं बना सकते, वो कोवलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं. सो अगर आप वीडियो 1 देखें, उसमें हमने उस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि ऑक्सीजन बीइंग अ नॉन मेटल विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, बट ऑक्सीजन आल्सो हैज द प्रॉपर्टी ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स. ऑल नॉन मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ शेयरिंग एज वेल एज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. सो मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्डिंग तो ओके है, बट नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्डिंग नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज नॉन मेटल अगेन will gain electrons. दोनों नेगेटिव चार्जेस बनाएंगे. अब नेगेटिव चार्जेस तो रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट तो करेंगे नहीं. सो अगर उन्होंने बॉन्डिंग फॉर्म करनी है, फॉर एग्जांपल द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड, नॉन मेटल कंपाउंड मेड ऑफ टू नॉन मेटल्स इज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हो, ऑक्सीजन गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, इन सब में एटम्स आर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर आप देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन है. ऑक्सीजन एटम के पास 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर 8. दैट मींस इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 कम हैं. तो ये ऑक्सीजन एटम शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स. सो ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हाइड्रोजन एटम के साथ. एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा. ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 थे और एक हाइड्रोजन का शेयर करने के बाद ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया. फिर से टू रिपीट, जब ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, इट नीड्स 2 मोर. हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 1 है, तो जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऑर्बिट्स में घूमेगा. एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन सेकंड हाइड्रोजन से आ जाएगा. As a result, ऑक्सीजन के पास 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में. Likewise, हाइड्रोजन which has only 1 electron in its outermost shell, 1 इलेक्ट्रॉन उसका खुद का है और 1 इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा. तो हाइड्रोजन के पास भी 2 हो जाएंगे और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हो जाएंगे. As a result, ये दोनों हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएंगे और ये ऑक्सीजन भी स्टेबल हो जाएगा. Such a bonding is known as covalent bonding. So, आयोनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग में डिफरेंस क्या है? आयोनिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो आयंस फॉर्म होते हैं. कोवलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो वहां पे कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं. आयोनिक बॉन्डिंग में आयंस के बीच में, ऑपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होती है. कोवलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग के कारण बॉन्ड बनता है. अब देखिए, मीथेन इज अनदर एग्जांपल. अगर ये क्रॉसेस कार्बन के देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है. That means इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4. तो कार्बन के आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो मान लीजिए ये क्रॉसेस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, और ये डॉट्स हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं. हाइड्रोजन का तो एक ही शेल होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. तो जब ये शेयर करेंगे तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेगा, तो कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिला के ये हाइड्रोजन के पास 2 हो जाएंगे. और फर्स्ट शेल में तो मैक्सिमम 2 ही फिट हो सकते हैं, as discussed in video number 1. प्लीज उसको देखिए अगर आपने नहीं देखा है. सीक्वेंस में देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा. सो हाइड्रोजन एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक खुद का, एक कार्बन का. हाइड्रोजन बैलेंस्ड, ये हाइड्रोजन बैलेंस्ड, ये हाइड्रोजन बैलेंस्ड, ये हाइड्रोजन बैलेंस्ड. चारों हाइड्रोजन बैलेंस हो गए. लेट्स टॉक अबाउट कार्बन. कार्बन के खुद के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स उसने 4 हाइड्रोजन्स के साथ शेयर किए. तो कार्बन के भी सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 खुद के और 4 कार्बन के. एज अ रिजल्ट कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स फिट हो गए आउटर मोस्ट शेल में. कार्बन भी बैलेंस्ड हो गया. एंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड. सो मीथेन is an example of a covalent bond. So we come to an end of this video wherein we have discussed why do chemical reactions occur, what are the different types of bonds, that is the ionic bond and covalent bonding, and why do they take place. In the forthcoming videos number 3 to 7 we'll be discussing all the different types of reactions: combination reactions, single displacement reactions, double displacement reactions, decomposition reactions, redox reactions,
And if you've not seen our video number 1, we have discussed the basics of valencies, valence electrons, atomic numbers, class 9th revision, so to speak. So please do have a look at all these videos. All the links for the same are posted in the description below. In the end, if you have liked what we have to share, please do like, subscribe, share, comment, and do press the bell icon. It will motivate us to make even better videos for the future. Thank you and good luck.